In this video lecture, I want to explain basic hydrolysis and kinetics of basic hydrolysis. You can say the mechanism of the basic hydrolysis. अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन करो तो आप ये कहते हो कि सच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच ligand is replaced by or ligand is substituted by hydroxo group or hydroxyl group at basic condition is known as basic hydrolysis. The rate of reaction of these type of hydrolysis mechanism is 10 की पावर 6 टाइम greater than that of acetic hydrolysis. अगर आप इस केस की रीजन देखें कि आपके पास बेसिक हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन मैकेनिज्म या रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास ज़्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू एसिटिक हाइड्रोलिसिस, तो इसका आंसर ये है कि आप इस केस में इन केस ऑफ एसिटिक हाइड्रोलिसिस आपने वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करना होता है इन सेकंड स्टेप. बट इफ वी सी द मैकेनिज्म ऑफ basic hydrolysis, in first step you have to introduce the hydroxyl group in a given complex having leaving group. The hydroxyl group also have negative charge and the leaving group also have negative charge, so there will be repulsion between the hydroxyl incoming ligand and leaving group. The removal of the leaving group will be easy. As a result, the rate of reaction will be 10 की power 6 times greater than that of hydrolysis reaction. I explain this by an example. अगर आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बेसिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की इक्वेशन लिखें, आप किस केस में बेसिक हाइड्रोलिसिस करें, पेंटा अमाइन क्लोरोकोबाल्ट की केस में अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बेसिक हाइड्रोलिसिस का जो मैकेनिज्म आता है वो कुछ इस तरह से ऑब्टेन होता है. इसमें आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करोगे. फर्स्ट स्टेप में आपके पास इंट्रोडक्शन होगी. जब आपके पास इंट्रोडक्शन होगी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इस केस में, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि इस तरह की कुछ सिचुएशन हो जाएगी. Cl1 नेगेटिव और एंड OH1 नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब ऐड होगा तो देयर विल बी रिपल्शन इन दिस केस, और इस केस में रिपल्शन होने की वजह से आपका जो लिविंग ग्रुप है माने Cl1 नेगेटिव, इसकी जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज 10 की पावर 6 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ एसिटिक हाइड्रोलिसिस. बट इन केस ऑफ एसिटिक हाइड्रोलिसिस आप क्या करते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन हो फर्स्ट स्टेप में आपके पास लिविंग ग्रुप लीव करता है, -x होता है और Cl1 नेगेटिव, और देन आपके पास इसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के बाद आपके पास क्या ऑब्टेन होता है कि आपका अटैक करता है वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो इस केस में आपका रिमूवल ऑफ Cl इजीली नहीं होता बाय द एक्शन ऑफ इनकमिंग लिगेंड, तो उसको कोई सीन नहीं होता. इसलिए ये वाले रिएक्शन जो होते हैं ये स्लो होते हैं एज कंपेयर टू बेसिक हाइड्रोलिसिस. The well-known example of basic hydrolysis is the hydrolysis of pentamine chlorocobalt complex, and we get product. Equation example will be written as pentamine chlorocobalt 3 complex undergo one basic hydrolysis, then we get the product that is CO NH3 5H plus Cl1 negative. It is the product of basic hydrolysis. Now we have to determine the mechanism of basic hydrolysis. The kinetics explain two types of mechanism of the basic hydrolysis. The first one mechanism is
SN2 displacement mechanism and second is SN2 dissociation mechanism. In this video lecture, I only explain the SN2 displacement reaction mechanism. The step of this type of mechanism is, in first step, the incoming ligand introduced into the octahedral complex. Introduction of incoming ligand, that is Y ligand, it will be hydroxyl group, or we also say incoming ligand, introduction of hydroxyl group in a coordinated complex having octahedral geometry having Cn number is equal to 6 coordination number. In second step, removal of X group, that is leaving group, will be occurred and we get product. By the introduction of hydroxyl group in a ligand in a coordinated complex, the geometry of the coordination complex will be changed from octahedral to pentagonal pyramidal, and then by the removal of the leaving group it will be converted into octahedral. So geometry conversion for SN2 displacement reaction will be represented as, in this case, सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स किसके साथ रिएक्ट करेगा, इनकमिंग लिगेंड के साथ, और आपके पास ज्योमेट्री कौन सी ऑब्टेन होगी इंटरमीडिएट की, पेंटागोनल पैरामिडल. इन दिस केस द ज्योमेट्री ऑफ द reactant, that is pentamine chlorocobalt 3 complex, octahedral. It is 100% confirmed that its geometry is octahedral. When the OH group introduced in this type of geometry, then it will become pentagonal pyramidal. That will be represented as NH3. I represent NH3 by N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cl and OH. This is pentagonal pyramidal geometry. And coordination number of intermediate Cn is equal to 7. Due to this type of repulsion between two negative ligand, the leaving group easily replaced and we get octahedral geometry having substituted ligand CO. Finally we get octahedral complex. So in this case the geometry will be changed, first from octahedral to pentagonal, then octahedral. In this case coordination number is equal to 6. In this case coordination number of central metal atom is equal to 7, and in this case number is equal to 6. In this case the oxidation state of central metal atom is 3, and overall charge on the sphere, that will be equal to 2 plus, but in this case the charge on the sphere will be equal to 1 plus because 3 2 negative.
In this case, the charge on the sphere will be 2 plus. So it is geometric convergent during basic hydrolysis reaction. In case of SN2 displacement reaction, अगर आप इसके स्टेप्स देखो तो आप सिंपली कितनी स्टेप्स में ये रिएक्शन अकर होता है, 2 स्टेप्स में अकर होता है. तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होता है कि आपके लिगेंड का इंट्रोडक्शन होता है, दैट्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज CO. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द kinetics, or we are going to find the order of the reaction and confirm either it is SN2 displacement reaction or not. So for this purpose, CONH3 5Cl. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने क्या बोला है कि इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करें लीगेंड की, इनकमिंग लीगेंड की, दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन. और आपके पास क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगी 5ClOH. इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 7 and geometry will be trigonal bipyramidal. In this case, the rate of formation of intermediate will be represented by K1 and rate of decomposition of intermediate will be represented by K2. So these two steps will be written as separately in such a way. This intermediate, when the pentamine cobalt chloro complex react with OH, intermediate will be formed and it decompose, and then we can get this type of complex because it is possibility. ऐसे भी हो सकता है कि ये दोबारा से OH नेगेटिव रिमूव हो जाए और दोबारा से आपको वही कम्प्लेक्स ऑब्टेन हो जाएगा, बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लेस होते हैं. इसलिए ये वाला जो आपके पास रेट होता है ये लेस होता है एज कम्पेयर टू दिस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है और इस केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरो ग्रुप, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एज कम्पेयर टू chlorine. That's why this chance will be, this rate of formation chance will be slow. HCl, sorry, 5Cl. इस फॉर्मेशन के चांसेस भी आपके पास हो सकते हैं. समवट रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो इस केस में हम इस तरह से स्टेप्स को रिप्रेजेंट करेंगे. और क्या होगा कि जो फाइनल स्टेप आपके पास क्या होगा कि इसी में से आपके पास ये रिमूव हो जाए, क्या चीज़, क्लोरो ग्रुप. इसको थोड़ा इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपके पास Cl1 नेगेटिव रिप्लेस हो जाए ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रिपल्शन, और यू कैन गेट इन दिस केस K3 स्टेप, rate constant K3, and you get the product. Final product is CONH3 5OH. ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है. एंड वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट. तो इस प्रोडक्ट को अगर आप फाइंड करो तो आप क्या कहोगे, द रेट ऑफ फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कैनेटिक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट. सो D CONH3 5OH, that is product. Rate of formation with respect to small time formation of the product directly proportional to the CO. इंटरमीडिएट इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वाला रिएक्शन उस वक्त पॉसिबल होगा जब इसमें से रिमूव होगा, तो इसका रिएक्टेंट ये होगा NH3 5OHCl. अब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर रिमूव करें तो दैट्स यू हैव टू फाइंड अ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू K3. तो आप इसको क्या करोगे, K3 करोगे. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन नंबर 1 को हम इधर प्लेस कर देते हैं. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K3 CONH3 5
OHCl। अब आपको क्या करना होगा, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर finding the intermediate concentration, we have to put this equation in this value of intermediate in this equation and we get the kinetics of the reaction। इस purpose के लिए आप क्या करोगे कि as you know that intermediate will be formed and decompose, so we use the steady state of approximation in order to find the concentration of intermediate, that will be equal to the rate of formation of intermediate will be equal to the rate of decomposition of intermediate। So I represent in this case rate of formation of intermediate is equal to rate of formation of intermediate, it is not general representation but I represent in this way, rate of decomposition of intermediate। अगर आप रेट ऑफ फॉर्मेशन देखो तो आपके पास किस केस में, किस इक्वेशन में इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हो रहा है, इक्वेशन नंबर ए में, दैट्स इन दिस केस द इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म व्हेन द पेंटामाइन कोबाल्ट क्लोरो कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कंसंट्रेशन। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट रिमूव करोगे तो आपकी फाइनल किस तरह से आएगा, आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन आपकी इंटरमीडिएट की ये है, तो आप क्या लिखोगे, NH3 5Cl OH दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of OHI and CO NH3 5Cl। अब आप इसके प्रोपोर्शनैलिटी जब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, K1 आएगा। अब इसी ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है, तो इस केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो आप क्या करोगे कि इस चीज को रिमूव करके इस केस में आप ये वाली वैल्यूज पुट कर दोगे, K1 OH CO NH3 5Cl। अब आप सिमिलरली रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आप फाइंड करेंगे, तो डिकम्पोजिशन के लिए भी आपके पास यही होगा कि इस केस में आपके पास डिकम्पोज हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, दैट्स विल बी इक्वल टू सिमिलरली द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट दैट्स विल बी इक्वल टू K2 CO NH3 5OHCl प्लस, क्योंकि आपके सेकेंड स्टेप में डिकम्पोज हो रहा है और इस स्टेप में डिकम्पोज हो रहा है, प्लस K3 CO NH3 5OHCl। या आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर आप देखो तो दिस प्लस पोर्शन इज इन दिस साइड, तो अगर आप देखें तो इस चीज को आप कॉमन कर सकते हो। तो अगर आप कॉमन करें इस चीज को तो आपके नेक्स्ट स्टेप आपके कुछ इस तरह से बनेगा, इसको आप कॉमन कर लेंगे, K2 प्लस K3, आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन। तो इंटरमीडिएट आपके पास इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू है, तो आप इसको फाइंड करोगे तो इस ये वाला आपका पोर्शन नेक्स्ट स्टेप में किसके नीचे आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो आपके पास K2 प्लस K3, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को पुट करें, रेज द ऑल इक्वेशंस, अगर आप इस सिचुएशन में ये वाली वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, dt इज इक्वल टू K3 इंटू K1 CO NH3 5OH ओवर K1 प्लस K3, सॉरी K2 प्लस K3। अब आप K2 स्टेप में अगर देखा था आपने 100%, K2 स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा था, K2 स्टेप में एक्चुअली आपका इंटरमीडिएट डिकम्पोज हो रहा था रिएक्टेंट में और आपके को इस तरह की कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही थी। अगर मैं रिकॉल करें दोबारा से K2 की इक्वेशन को, तो आप देख सकते हो कि NH3 ये आपके पास हुआ था
बना था और इसकी डिकम्पोजिशन हो रही थी कुछ इस तरह से कि ये दोनों इनके दरमियान रिपल्शन नहीं हो रही थी, बल्कि ये इस तरह से हो रहा था कि अगर ये पॉसिबल है कि ये वाला दोबारा से इसका अटैक हुआ, दोबारा से ये रिमूव हो जाए, OH रिमूव हो जाए और आपको रिएक्टेंट मिल जाए वही वाला CONH3 5Cl, बट इसके चांसेस बहुत लेस होते हैं क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिपल्शन होती है और लिविंग ग्रुप लीव करता है। क्यों ऐसा होता है, दोबारा अगेन रीजन बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और ऑक्सीजन OH लिगेंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी, इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लोरो ग्रुप। तो क्लोरो ग्रुप लीव करने की टेंडेंसी रखता होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लीव नहीं करेगा, तो इसके चांसेस बहुत लेस होते हैं, बहुत ज्यादा लेस होते हैं। तो इस K2 को आप निगलेक्ट कर सकते हो, इसकी कंसंट्रेशन आप 0 पुट कर सकते हो क्योंकि ये रेट बहुत ज्यादा स्लो होगा, बहुत ज्यादा, और इस केस में बहुत कम फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए आप इसको 0 कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरो ग्रुप, सो इट अटैच टू द कोबाल्ट 3 एनाइन एज कम्पेयर टू क्लोरो ग्रुप। तो ये ना आपको रीजन कंफर्म हो गई। तो जब आप इसकी 0 पुट करेंगे तो आपके नीचे क्या आएगा, K3 ही आएगा आपके थर्ड नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको पता है कि K3.K1/K3 ये सारे आपके कांस्टेंट के इक्वल होंगे, दैट्स विल बी K प्राइम। तो इन तमाम को आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर दें, इसको K प्राइम के इक्वल कर दें। अब आप देखो तो आपके पास 100% कन्फर्म है। तो इस केस में मैंने Cl लिखना भूल गई, Cl आपने लिखना है। इस केस में आपके पास 100% कन्फर्म है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर K को आप मट कर दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों की कंसंट्रेशन पे। ये आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन, एंड प्लस ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है, जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों की कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स, इसको आप रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हो। तो D/dt ऑफ कम्प्लेक्स ये आपके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दो की कंसंट्रेशन में। तो सो इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो आपके पास क्या होता है, SN2। अगर SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसकी अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करें तो आप सिंपली इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एनर्जी, रिएक्टेंट आपके पास क्या था। हम इस केस में इसी एग्जांपल को कोड कर रहे हैं, तो आप एग्जांपल जनरल भी आप कर सकते हो, एग्जांपल भी आप दे सकते हो। NH3 5Cl ये आपके पास रिएक्टेंट है। अगर आप जनरल करेंगे तो आप Ml5X करके करेंगे। इस केस में आपके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, =6, और इसकी ज्योमेट्री भी इधर थोड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं। जनरल की फॉर्म को अभी आप रहने दें, आपको बता दिए। इसका CN नंबर 6 है, तो इसकी ज्योमेट्री आपके पास क्या होगी, इस तरह से होगी। अमोनिया को मैं N से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ClN, तो आप ये देखें इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इस केस में आपके पास रिएक्टेंट की, और आपके पास क्या होगा कि ये जब इसके साथ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फिर आपके पास क्या होगा कि इस केस में इंटरमीडिएट आपका बनेगा, और इस तरह से आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इसके ऊपर CONH3 5, और लीविंग ग्रुप आपका क्या करना है, लीव करना है। ये आपकी इंटरमीडिएट की स्टेट थी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी। एक तरफ से ये अटैक करेगा, दूसरी तरफ से ये रेट रिप्लेस करेगा, इसको आप क्या कहोगे, इंटरमीडिएट। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा, पेंटागोनल पैरामिडल ज्योमेट्री होगी, और फिर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी, दैट इज COOH NH3
ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। इस केस में अगर इसकी आप ज्योमेट्री ड्रॉ करना चाहें तो आप इस तरह से इसकी ज्योमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो, इंटरमीडिएट की CO। कुछ इस तरह की आपकी ज्योमेट्री बनेगी। आप सिंपली इस तरह से भी कर लेते हैं इसकी ज्योमेट्री को CO, पेंटागोनल पेंटागोनल पैरामीटर, थोड़ा पेंटागोन की तरह आप ड्रॉ कर लें इसको, ऐसे ऐसे। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट पेंटागोन आपकी बन गई है। तो इस केस में आपके तमाम लिगेंड्स Cl और OH इन दोनों का आपका रिपल्शन होगी। बाकी आपके पास NH3 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 H3 H3, it is pentagonal bipyramidal. So it is all about reaction coordinate. It is all about the basic hydrolysis, its mechanism, kinetics mechanism, that is SN2 displacement mechanism, and its energy profile diagram.